Is there any problem? Any question? Any question which I have solved yesterday which you didn't understand? Tell me, bete. Samriddhi. Any problem? Anything which I have to repeat? Nobody is speaking. Sir, question number 4. Question. Which question? Sir, 3. 4. Third. Good. Yes. Question number 3. Question number 3. There are 3 machines. ठीक है. So question number 3. There are 3 machines. Machine 1, M1. Question number 3. M1. तीनों पे हमें एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है. You have been given annual estimated life. You have been given the scrap value of all the 3 machines and the original cost, and we have to calculate the depreciation, annual depreciation first. So देखिए यहाँ पर पहली मशीन आप क्वेश्चन नंबर 3 open your books first. Annual depreciation is equals to, देखिए, on 1st April furniture costing 55,000 was purchased. So original cost of this furniture is 55,000, and it is estimated that its life is 10 years, and at the end of which it will be sold for 5,000. And its scrap value is 5,000, and estimated life is 10 years. 50 यानी annual depreciation of machine 1 या फर्नीचर कहते हैं हम इसको F1. जहां ना समझ में आए वहां आप तुरंत पूछिए. ठीक है. सेकेंड मशीन, additions were made on 1st April 2015 and 1st October 2017 to the value of 9,500 and 8,400. तो फर्नीचर 2 हमने कब खरीदा, जब भी खरीदा वो बाद में देखेंगे. एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू, सेकंड वाली कितने की थी, 9,500. क्वेश्चन पढ़ते रहिए. इसकी रेसिडुअल वैल्यू कितनी थी, 500. सेकंड वाला जो एडिशन हुआ है, फर्स्ट वाला एडिशन, उसमें रेसिडुअल वैल्यू 500 है. And show the furniture for the, if depreciation written off, 1 second, at the end of additions are made on 1st April and 1st October for the value 9,500 and 8,400. Residual values, but इसमें estimated life नहीं दिख रही है मुझे. Estimated life of second and third machine या furniture. Second and third furniture. Additions are made on 1st April 2015 and 1st October to the value of 9,500 and 8,400. Residual value 500 and 400 respectively. Show the furniture account for the first 4 years if depreciation written off according to the straight line method. चलो इसको भी हम लोग 10 इयर्स ही मान लेते हैं क्योंकि इन्होंने एक मशीन का 10 इयर्स दिया था.
तो दूसरी मशीन का भी, दूसरे फर्नीचर का भी 10 इयर्स वैसे इनको देना चाहिए था। एस्टिमेटेड लाइफ आपने फर्स्ट फर्नीचर की दी है इन्होंने और सेकंड फर्नीचर की नहीं दी है। हम एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको दी होगी जब भी आपको एग्जाम में आएगा। 10 इयर्स इसकी भी मान ले रहे हैं, तो इट इज 900 एंड फर्नीचर 3 की एनुअल डेप्रिसिएशन will be 8,400 minus 400 divided by 10, that is 800. तो ये मैंने F1, F2, F3 का एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लिया। गॉट इट? देखिए एक कंडीशन है कि अगर आपके पास सामने बुक नहीं खुली हुई है, if you don't have book right now you can't understand this. So first open your book, all of you. Furniture account. Now we have to make furniture account. Watch it carefully. So first furniture was purchased on 1st April 2014. 2014, 1st April, to bank account 55,000. 1 अप्रैल 2014 को, देखिए डेट सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, डेट। तो 1st अप्रैल 2014 को अगर ईयर एंड स्टार्ट हुआ है तो इट विल बी एंड ऑन 2015 31st March by depreciation account। ठीक है, अब पहले पे कितना डेप्रिसिएशन लग रहा था? 5,000। तो ये फर्नीचर हमने 55,000 का परचेज किया था। एक साल यूज करने के बाद इसमें 5,000 का डेप्रिसिएशन लग गया और एट द एंड ऑफ दिस ईयर द फर्नीचर कॉस्ट विल बी बैलेंस कैरिड डाउन, इट विल बी 50,000। फर्स्ट ईयर समझ में आ गया आपको? पहला साल क्लियर है? Yes, sir. Yes, Good. sir. इसके बाद ये कैरी डाउन जो है वो अगले साल ब्रॉट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर विल बी स्टार्टिंग ऑन 2015 1st April। ठीक है, टू बैंक अकाउंट sorry balance carried down will be balance brought down 50,000। wait a minute, yes, next machine। अच्छा, ये फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा हमारा? 2016 31st March। देखिए अप्रैल में शुरू हुआ, नेक्स्ट ईयर मार्च में एंड हो गया। जो सेकेंड फर्नीचर खरीदा था हमने, दैट विल बी ऑन 1st April 2015, सेम डेट। 1st April 2015 को हमने एक फर्नीचर और परचेज किया था टू बैंक अकाउंट। ये 1 हो गया और ये 2। अब 2 फर्नीचर हो गए हमारे पास। एक 9,500 का हमने इस साल और खरीद लिया। आर यू गेटिंग दिस? क्लियर है? Sir, second entry is of 2016. ये Yes, this sir. one, बेटे, one more furniture was purchased on 1st April 2015। Sir, 2016. 2015 बेटे, in my book 2015 is mentioned।
मेरी बुक में 2015 मेंशन है। ओके, देखिए 1 अप्रैल 2014 को हमने फर्स्ट फर्नीचर खरीदा। पहला फर्नीचर हमने कब खरीदा? 1 अप्रैल 2014 को। इज इट क्लियर? 1 अप्रैल 2014 को हमने पहला फर्नीचर खरीदा। क्लियर? इस पे हम Yes, एक साल sir. कब कंप्लीट होगा? इस साल। बेटे आपकी बुक में 2015 दिया होगा, मेरी बुक में 2014 दिया हुआ है। लेट इट बी 2014 2015 से मतलब नहीं है बेटे, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अलग अलग एडिशंस हैं। मेरे पास एक साल पुराना है बेटे, ठीक है। मेरे में जो लिखा है बुक में भी वही लिखा हुआ है। यू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटे। क्वेश्चन में कुछ भी दिया है, कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि मे बी पॉसिबल कि आपके पास दूसरा एडिशन हो, किसी और के पास कोई और एडिशन हो, मेरे पास कोई और एडिशन की बुक हो, ठीक है। तो देखिए 2014 1 अप्रैल को हमने पहले फर्नीचर खरीदा। अब ईयर एंड कब होगा? 2015 31 मार्च। ईयर एंड पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर वी चार्ज डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5000, ठीक है। अब बाय बैलेंस कैरेट डाउन 50,000, ठीक है। अब इसको कैरी डाउन, यस। Switch off the microphones. Switch off the microphone. Who is that? Then 31st मार्च को ये ईयर एंड हुआ। 1 अप्रैल से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। अच्छा, इसी फाइनेंशियल ईयर में एक मशीन और खरीद ली या फर्नीचर। 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट 9,500। अब इन दोनों, अब ईयर एंड कब होगा? 2016 31 मार्च, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 and 2। पहले पे कितना लग रहा है? 5,000। दूसरे पे कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है? 900। 31 मार्च बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1 and 2, ये आ जाएगा 45,000 और ये आ जाएगा 9,500, 8,600, 8,600। कैसे आया? समझ में आया ना? पहली मशीन कितने की थी? 50,000। पहली मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना लगाया? 5,000। तो पहली मशीन का बैलेंस कितना बच गया? 50,000 माइनस 5,000, दैट इज 45,000। सेकंड मशीन थी 9,500 की, इस पे 900 का डेप्रिसिएशन लग गया। बैलेंस कितना बचा? 8,600। इज इट क्लियर? These 2 years are clear to everyone? Yes, sir. चलिए, Yes. okay. Now next year will be starting from 2016 1st April. Two balance brought down 1 and 2, 45,000 और 8,600, ठीक है। And this year will end on 2017 31st March by depreciation account first and second। फर्स्ट मशीन पे 5,000 का डेप लगेगा एंड सेकंड मशीन पे 900 का डेप्रिसिएशन लगेगा, जैसा कि पहले लगा।
and 31st March, by balance carried down 1 and 2. देखिए 45,000 की मशीन थी, 5,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, इट वुड बी 40,000. 8,600 की मशीन थी, 900 का डेप लग गया, बैलेंस विल बी 7,700. जैसा कि हम लोग अब देखिए इसमें करना वही है, हर ईयर में वही करना है. खरीदा, डेप्रिसिएशन लगाया, बैलेंस कर दिया, बैलेंस लाए, डेप्रिसिएशन लगाया, बैलेंस कर दिया. सिंपल है, ठीक है. यहां तक हम वही करते आए. 1 साल का और बनाना है हमको. तो ये ईयर कब स्टार्ट होगा? 2017 1st April. True balance brought down 1 and 2, 40,000 and 7,700. अब देखिए ये ईयर कब एंड होगा? 2018 31st मार्च को. ध्यान से देखिए ये ईयर कब स्टार्ट हो रहा है? 1st April 2017 एंड एंड कब हो रहा है? 31st मार्च 2018. एक थर्ड फर्नीचर जो खरीदा है इसने, दैट इज ऑन 1st October 2017. 1st October 2017 मेरी बुक में ये लिखा है. तो देखिए 1st October 2017 इसी ईयर में आएगा ना, अप्रैल के बाद आएगा, मार्च के पहले आएगा, यानी इन बिटवीन दीज. तो आई विल राइट 1st October to बैंक अकाउंट. एक थर्ड फर्नीचर और खरीदा है, दैट कॉस्ट रुपीज 8,400. ठीक है, ये दोनों तो पहले से थे हमारे पास. ये हमने एक फर्नीचर और खरीद लिया है 8,400 का, दैट इज ऑन 1st October. बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 2 3. अब 3 मशीनें हैं तो तीनों पे डेप लगेगा. पहली वाली पे कितना लग रहा था? 5,000. दूसरे फर्नीचर पे कितना लग रहा था? 900. तीसरा देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये हमने कब खरीदा है? 1st October को, और 31st मार्च को हम इस पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं. ये खरीदा हमने 1st October को और 31st मार्च को हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं. तो याद रखिए इसमें हम 6 महीने का लगाएंगे, यानी जो एसेट को हम जितने मंथ यूज करते हैं उतने मंथ का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, नॉट मोर देन दैट. तो अब देखिए एनुअल डेप्रिसिएशन था थर्ड मशीन का 800. हम 6 मंथ यूज कर रहे हैं तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा. 1 साल का एनुअल डेप्रिसिएशन वाज 800, तो 6 मंथ्स का 400. याद रखिए दिस एसेट को हम जितने मंथ्स यूज करते हैं उस फाइनेंशियल ईयर में उतने मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन लगाते हैं. ये अक्टूबर में खरीदी थी, 31st मार्च 6 महीने. बाय बैलेंस carried down 1 2 3. अब 40,000 की फर्नीचर थे, 5,000 का डेप लग गया, कितना बचा? 35,000. 7,700 के फर्नीचर थे, इस पे 900 का डेप लग गया, तो 8,600. और 8,400 के फर्नीचर थे थर्ड वाले, थर्ड में से थर्ड माइनस कर देंगे, then you will get 8,000. Done. So is there any problem in this question? No, Is there sir. any problem in this question? No, sir. Please solve this question again with, ठीक है, अपनी बुक से अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कीजिएगा. ठीक है, बिना प्रैक्टिस के अकाउंट्स नहीं आती है.
तो आप एक बार इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम होती है कल मैं फिर बता दूंगा। क्लियर? तो एंड आगे के क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा प्लीज। आगे के क्वेश्चंस में क्या है, ये नहीं दिया होगा, आपसे कहा गया 10%, आपने मशीन खरीदी, 10% डेप लगाया, बैलेंस कर दिया। तो ये क्वेश्चन प्लस एक दो क्वेश्चन और लगाइएगा। थैंक यू सो मच।